Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine at home and you are doing well and studying also. Along with this, we have to follow some steps to keep ourselves safe from coronavirus, because during this epidemic, we have to keep our health fit and fine. So beta, today we are going to start our today's lecture with a summary, as I already taught you this lesson. So let's remind these points further. For class 5th, subject English reader, lesson number 2, and it is lecture number 3, as I already posted 2 lecture before this summary lecture. Book's name is Essence. Topic we are taking lesson 2, Steve Jobs, a great visionary. Summary. So this is a summary lecture, okay, and I already explained this lesson before precisely. So here in this summary lecture I'll cover some highlighted points. Okay, let's move. Here the contents of this lecture is summary lecture. First of all, you will get summary lecture, then you will be taking some previous homework solution, means the homework I posted yesterday, day before yesterday. The solution of this homework you will get today, and last but not the least, it will end with homework, and you have to do homework and send me via my mail address that I have already shared in the group, or you can WhatsApp me also. Okay, so the lesson starts from here beta. Steve Jobs was an American inventor, designer and entrepreneur, and also the co-founder and CEO, means Chief Executive Officer of Apple Computer. This lesson is completely about Steve Jobs, who was an American inventor. American थे वो, अमेरिका में उनका जन्म हुआ था. He was born in America also, and he was inventor. Inventor मतलब a person who invents, okay, something, जिन्होंने जो चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, जो चीज़ों को आविष्कार करते हैं. ओके, सो ही वॉज एन इन्वेंटर ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स, एप्पल कंप्यूटर. वो एप्पल कंप्यूटर के इन्वेंटर थे क्योंकि उन्होंने उनको इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था. डिज़ाइनर ऑल्सो. डिज़ाइनर मीन्स हेयर ही डिज़ाइन मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ एप्पल, लाइक मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, iPhone, iPad, iPod. And entrepreneur means industrialist, and also the co-founder and CEO of Apple Computer. और वो co-founder मतलब सह संस्थापक, means he associated with his friend Steve Wozniak and Ronald Wayne, and he set up Apple company. मतलब उन्होंने एप्पल कंपनी को सेटअप किया तो वो को फाउंडर हुए, जिन्होंने उसको सेटअप किया, बनाया, मतलब उसका जैसे बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उसकी नींव रखी, मतलब उसको मतलब एप्पल कंप्यूटर को वो लेकर आए इस दुनिया में. ही वॉज बॉर्न इन सन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया on 24 फरवरी 1955. उनका जन्म कैलिफोर्निया स्टेट के सैन फ्रांसिस्को सिटी में हुआ था 24 फरवरी 1955 में. हिज फादर वॉज अ मशीनिस्ट. उनके पापा एक मशीनिस्ट थे, मशीन पे काम करने वाले एक वर्कर थे. हु वर्कड फॉर अ कंपनी. उन्होंने एक कंपनी के लिए काम किया था, जो कंपनी क्या बनाती थी, लेज़र्स लाइट वगैरह जो होती हैं, लेज़र्स जो होते हैं वो बनाती थी. एंड साइड बाय साइड ही टॉट हिज सन, मीन्स ही टॉट हिम यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है, स्टीव जॉब्स के लिए. ही टॉट हिम ऑल्सो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब स्टीव जॉब को भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में पढ़ाना सिखाना स्टार्ट किया. एंड फ्रॉम देन ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. तब से ही स्टीव जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो गया, इंटरेस्ट उनका जनरेट हो गया, उन्होंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया. जॉब्स वॉज अ प्रैंकस्टर. जॉब एक प्रैंकस्टर थे स्कूल टाइम में, मतलब बहुत शरारती थे. ही completed his initial schooling at Montaloma Elementary School in Mountain View.
माउंटेन व्यू में उन्होंने इस स्कूल में अपनी इनिशियल स्कूलिंग मतलब प्राइमरी क्लास को कंप्लीट किया। जैसे आपकी 1 to 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8th क्लास हो गई, 9th क्लास तक उन्होंने मोंटालोमा एलिमेंट्री स्कूल में अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। हिज टीचर यूज टू ब्राइब हिम इन ऑर्डर टू मेक हिम स्टडी। उनकी जो टीचर थी वो उनसे पैसे लेती थी उनको पढ़ाने के लिए। ही टेस्टेड सो वेल हाउएवर दैट administrators wanted to skip him ahead to high school but his parents declined। मतलब कि वो इतने इंटेलिजेंट थे। ही टेस्टेड सो वेल, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट प्रूव हुए थे, एक ब्राइट स्टूडेंट प्रूव हुए थे, जिसके चलते जो वहाँ का एडमिन पार्ट था उनके स्कूल का, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो चाहते थे कि वो उनको आगे जंप करवाएं, हाई स्कूल में भी उनको भेजें कि उनको स्टीव जॉब को पढ़ने के लिए। बट हिज पेरेंट्स डिक्लाइन, लेकिन उनके पेरेंट्स ने डिक्लाइन कर दिया, मतलब मना कर दिया उनको आगे पढ़ाने के लिए। ओके, हिज फादर एंड हिज मदर बोथ डिक्लाइन टू सेंड हिम फर्दर फॉर स्टडीज़। ओके, उनके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो आगे पढ़ें। आफ्टर हाई स्कूल जॉब्स एनरोल्ड एट रीड कॉलेज इन पोर्टलैंड। हाई स्कूल के बाद जब उन्होंने समहाउ ही कंप्लीटेड हिज हाई स्कूल, मतलब कैसे ना कैसे उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट करा। जॉब्स एनरोल्ड एट रीड कॉलेज इन पोर्टलैंड, उसके बाद उन्होंने किस में एडमिशन ले लिया? रीड कॉलेज में। पोर्टलैंड भी एक स्टेट है अमेरिका में ही, वहाँ पर उन्होंने एडमिशन ले लिया कॉलेज में। लैकिंग डायरेक्शन he dropped out of college after 6 months and spent next 18 months dropping in and out of various courses including calligraphy। lacking direction मतलब डायरेक्शन की ना होने की वजह से, मतलब उनको डायरेक्शन नहीं मिली कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। he didn't get direction in which field he should start his career। उनको ये नहीं पता था कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सो क्या उन्होंने आगे क्या किया? ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज आफ्टर 6 मंथ, मतलब जब उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तो उन्होंने कॉलेज 6 महीने बाद ही छोड़ दिया। एंड स्पेंड नेक्स्ट 18 मंथ्स, और उन्होंने अगले 18 महीने कभी किसी कोर्स में कोई ज्वाइन करा, कभी कोई कोर्स ज्वाइन करा, और उन कोर्स मतलब उन्होंने काफ़ी कोर्स ज्वाइन करे, बहुत क्रिएटिव कोर्सेज उन्होंने ज्वाइन करे। उसके बाद उन्होंने उसी में एक कोर्स था कैलीग्राफी का। कैलीग्राफी क्या होता है? द वे ऑफ राइटिंग समथिंग इन अ डिज़ाइनिंग वे, मतलब डिज़ाइन में राइटिंग को लिखना, दैट इज़ कैलीग्राफी। इन 1974 जॉब्स टुक अ पोजीशन एज अ वीडियो गेम डिज़ाइनर विद अटारी इनकॉर्पोरेटेड। अब वो डिज़ाइनर कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने वीडियो गेम भी डिज़ाइन किया था 1974 में। उन्होंने एक पोजीशन मिली थी उनको एक कंपनी में, अटारी इनकॉर्पोरेट में, एज अ वीडियो गेम डिज़ाइनर। उन्होंने वहाँ पे वीडियो गेम भी डिज़ाइन किया था। सेवरल मंथ्स लेटर ही लेफ्ट द कंपनी टू फाइंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट इन इंडिया। कुछ महीने बाद में उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी, क्योंकि वो क्या चाहते थे? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। वो योगा करके अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, इसलिए वो कहाँ चले गए? इंडिया, मतलब इंडिया में आ गए। When he came back from India, he associated with Steve Wozniak. After 7 month, मतलब 7 महीने के बाद में इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया। He left India and he came back to America. When he came back from America, he associated with Steve Wozniak, which proved milestone. मतलब इंडिया से आने के बाद में जब वो अमेरिका वापस आए तो उन्होंने किसका साथ लिया? किसके साथ वो ज्वाइन हुए? वो स्टीव वॉजनाइक के साथ में ज्वाइन हुए, जो कि उन दोनों की जोड़ी क्या हुई? एक माइलस्टोन प्रूव हुई, एक मील का पत्थर प्रूव हुई, मतलब कि बहुत बड़े अचीवर बने दोनों के दोनों। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया साथ में मिलकर, इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दिया, मतलब क्रांति ला दी, मतलब हर चीज़ उन्होंने IT इंडस्ट्री में चेंज कर दी। जॉब वॉजनाइक एंड रोनाल्ड वेन फाउंडेड एप्पल कंप्यूटर्स इन द गैराज ऑफ जॉब्स पेरेंट्स। जॉब के पेरेंट्स जो है वो उनका एक गैराज था जिसमें एप्पल कंप्यूटर रखा हुआ था। तो जॉब वॉजनाइक, मतलब स्टीव वॉजनाइक एंड रोनाल्ड वेन, इन तीनों ने मिलकर उस कंप्यूटर को ढूंढा। कहाँ पे ढूंढा? इन द जॉब्स पेरेंट्स गैराज। अब बेटा उनको कंप्यूटर तो मिल गया, एप्पल कंप्यूटर तो मिल गया, लेकिन आगे क्या? अब मुझे कोई चीज़ मिली है तो उसके बाद मैं आगे क्या करूँगी? उसको सेटअप करूँगी,
ओके, उसके प्लांट लगाऊँ। प्लांट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक पौधा लगाना। प्लांट होते हैं जैसे कंपनी के प्लांट होते हैं कि एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब एक पूरी कंपनी यहाँ लगी हुई है, उसका सेकंड प्लांट कहीं और लगा है, सेकंड कंपनी कहीं और लगी हुई है, ठीक है। तो लेटर व्हेन दे डिडंट हैव मनी बोथ डिसाइडेड टू कलेक्ट द फंड। जब बाद में उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि एक कंपनी को सेटअप करने के लिए, लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की नीड होती है, और जब उनको ये पता लगा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो दोनों ने डिसाइड करा, किस ने, स्टीव वोजनायक और स्टीव जॉब, दोनों ने डिसाइड करा कि वो फंड कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे फंड कलेक्ट? बाय सेलिंग देयर वॉल्क्सवैगन बस। स्टीव जॉब अपनी वॉल्क्सवैगन बस को बेच देंगे एंड स्टीव वोजनायक अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को बेच देंगे। दोनों ने ये चीज़ डिसाइड करी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज योर बिलव्ड थिंग, कि अगर आपको अपनी कोई चीज़ पानी है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। सपोज़ कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर स्लीप। अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करने का, अपने चीज़ों को, जिस चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उन चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? इफ़ यू डू नॉट सेक्रीफाइस देन यू हैव टू बी engaged over there only, and you should not you will not be able to focus in the other thing, means to become a successful man or woman। ये सक्सेसफुल मैन और वुमेन बनने के लिए हमें अपनी प्यारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप उनको नहीं छोड़ोगे तब तक आप आगे चीज़ें सक्सेसफुल मैन नहीं बन सकते वर्ल्ड पे। ओके, तो वही वॉल्स उन्होंने किया था, स्टीव जॉब और स्टीव वोजनायक ने। एक ने अपनी बस बेच दी। किसने बेची? हु सोल्ड द बस? स्टीव जॉब्स। एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर वाज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर बिलोंग टू स्टीव वोजनायक, देन ही सोल्ड हिज scientific calculator also in order to set up a Apple computer और Apple कंपनी, ठीक है। एप्पल कंपनी लगाने के लिए उन्होंने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर बेच दिया, जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्यारा था। वो उनको बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था, वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो बड़ी प्यार से रखते थे उसको। आफ्टर दैट दे ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री थ्रू द स्मॉलर, चीपर एंड एक्सेसिबल मशीन्स टू एवरी कंज्यूमर। कंज्यूमर होते हैं हम लोग, क्योंकि हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वी आर कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद में जब उन्होंने कंपनी सेटअप कर दी, उसके बाद में कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया अमेरिका में, और वो रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया तक पहुंचा। यू नो वेरी वेल, नाउ वी आर ऑल्सो यूजिंग एप्पल्स प्रोडक्ट्स, आईफोन, आईपैड, मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, दीज प्रोडक्ट वी आर ऑल्सो यूजिंग इन आवर इंडिया। तो ये प्रोडक्ट कैसे हुए बेटा? स्मॉलर, एक तो छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, चीपर, सस्ते भी होते हैं, एंड एक्सेसिबल, मतलब हर पर्सन उनको खरीद सकता है। अब ये नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे भी होते हैं, लेकिन अमेरिकन के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो अभी हमारी डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे तो इतना पॉवर्टी रेट नहीं होता। हमारे इंडिया में ज़्यादा पॉवर्टी रेट है अभी, यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा होते हैं। तो एप्पल आईफोन तो हम तो कंज्यूम नहीं कर सकते, हम तो नहीं ले सकते, लेकिन वहाँ के लोग तो, अमेरिका के लोग, उनके लिए तो ये बड़ी चीपर चीज़ें हैं, बड़ी सस्ती चीज़ें हैं। ओके, आफ्टर द रिलीज ऑफ एप्पल सेकेंड मॉडल एप्पल 2, सेल्स इंक्रीज बाई 2% 1980। जब एप्पल की कंपनी सेटअप हो गई, एप्पल से प्रोडक्ट आने लगी, तो उसकी सेल जो इंक्रीज़ हो गई, अब लोग क्या करने लगे, ज़्यादातर कंज्यूम करने लगे उन चीज़ों को, ज़्यादातर लेने लगे। किसको? एप्पल से प्रोडक्ट को। लेटर ही फेस स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन विद IBM। और ऐसा होता ही है कि जब चीज़ें ज़्यादा बिकने लगती हैं तो कोई न्यू कंपनी सेटअप हो जाती है साथ में, ठीक है। जब कोई कंपनी ज़्यादा अर्न करने लगती है, कमाने लगती है, तो उसके साथ में एक न्यू कंपनी भी आ जाती है, जो कि उसको कंपटीशन को देती है कि तुम इतना करोगे तो मैं भी इतना तुम्हारे साथ में इतना ज़्यादा काम करूँगा। तो जब स्टीव जॉब की कंपनी आई एप्पल, तो उसके साथ में एक और कंपनी वहाँ पे थी अमेरिका में, वो थी IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि इंडिया में भी है। ओके, अगर आपको नहीं पता हो तो बताती हूँ आपको, इंडिया में भी इसकी प्लांट हैं। प्लांट मतलब इसकी कंपनी सेटअप है यहाँ पे, नोएडा में, गुड़गांव में भी, हमारे गुड़गांव में भी हैं, नोएडा में भी हैं। तो IBM कंपनी हमारे इंडिया में भी है बेटा, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। As a result, he had to design as Apple's CEO in 1985 to begin a new hardware and software company
called Next Apple Incorporated in 1997. तो क्या हुआ, जब IBM आ गई अमेरिका में और स्टीव जॉब को अपनी ही कंपनी से एज अ CEO उनको रिज़ाइन करना पड़ा, अपना पोस्ट उनको रिज़ाइन करना पड़ा, वो CEO पोस्ट से हट गए। और जब वो हट गए तो उन्होंने क्या करा, एक नई उन्होंने सोचा कि अब मुझे एक न्यू कंपनी स्टार्ट करनी है, जो कि उन्होंने 1997 में एक नई कंपनी स्टार्ट करी थी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, क्योंकि IBM भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाती थी। तो स्टीव जॉब ने भी वही आइडिया लिया, ठीक है। तो उन्होंने भी एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था नेक्स्ट एप्पल इनकॉर्पोरेटेड। 1997 में वो नई कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी। दैट सेम ईयर ही रिटर्न टू हिज पोस्ट एज एप्पल CEO, और उसी ईयर जब उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट कर दी तो उन्होंने अपना पोस्ट भी दोबारा ले लिया एज अ CEO इन एप्पल्स कंपनी। Apple introduced many revolutionary products as the MacBook Pro, MacBook Air, iPod and iPhone, all of which have dictated the evolution of modern technology. Apple ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करा। रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट पहले कभी नहीं आए थे। जब स्टीव वोजनियाक ने कंपनी सेटअप करी थी एप्पल, तभी ये प्रोडक्ट आए थे, इसलिए उसको रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है, क्रांति लाने वाले प्रोडक्ट। जैसे कि मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, आईपॉड हो गया, आईफोन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ये मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, ये बेटा सारे उसके प्रोडक्ट हैं, एप्पल के प्रोडक्ट हैं। और ये लैपटॉप्स ही होते हैं, काइंड के लैपटॉप्स होते हैं। अगर आप चेक करोगे, गूगल करोगे तो लैपटॉप ही हैं ये। आईपॉड और आईफोन और आईपैड, टैबलेट वगैरह जो होते हैं, आईपैड वगैरह, आईपॉड जो हम ईयर्स में लगाते हैं, ठीक है, वो आईपॉड होते हैं। ये आईफोन तो आपको पता ही है, बहुत सारे होते हैं, इंडिया में भी हैं, सेल इंक्रीज हो रही है। ऑल ऑफ विच हैव डिक्टेटेड द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये सब क्या थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक इवोल्यूशन लेके आए। इवोल्यूशन क्या होता है बेटा, एक नई चीज़ें आना, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में क्या था कि स्टार्टिंग से ही हमारे पास में कोई ऐसे मॉडर्न गैजेट नहीं थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, पुरानी चीज़ों को यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, हम चल रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे कि इवोल्यूशन हमारे इसमें भी आया, स्टडीज़ में। हम पहले स्कूल में पढ़ते थे, अब क्या हो रहा है, अब हम जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे हम ये इवोल्यूशन ही है कि अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। दैट इज़ इवोल्यूशन इन स्टडीज़, ओके। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद कैंसर, स्टीव जॉब्स डाइड ऑन October 5, 2011। जब उनको कैंसर हुआ था, उनको पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था, पैनक्रियाज में कैंसर हुआ था उनकी। तो जब कैंसर हुआ उनको, तो उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में उनकी डेथ हो गई 5 October 2011 में। ही वॉज 56 एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ओनली वो 56 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई। ही वन मैनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स बिफोर एंड आफ्टर हिज लाइफ। उन्होंने बहुत सारे ऑनर्स और अवार्ड्स को जीता, बिफोर हिज लाइफ एंड आफ्टर हिज लाइफ ऑल्सो। ये नहीं कि आफ्टर वो लाइफ के बाद जब उनको मर गए तो फिर दोबारा आए, नहीं, उनके बच्चों ने उनके जो अवार्ड्स थे उनको लिया। सो ही वॉज पैशनेट, कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड एंड रिबेलियस। मतलब ये उनकी क्वालिटीज़ थी कि वो पैशनेट थे। पैशनेट मतलब उनके अंदर पैशन था, कुछ काम करने का जज्बा था। कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे वो चीज़ों को लेके। हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनत करने वाले थे। डिटरमाइंड थे, बहुत दृढ़ निश्चय थे। मतलब एक बार तो उन्होंने सोच लिया कि मुझे करना है तो करना ही है। और रिबेलियस थे, मतलब अपने दिमाग में चीज़ों को सोचते थे और कभी कभी उस चीज़ों की लड़ाई भी करते थे। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि कहीं जाके फाइट करने लगे वो। लड़ाई का मतलब ये है कि अपने हक के लिए, फॉर हिज ओन राइट ही वुड फाइट ऑल्सो। ही ब्रॉट रिमार्केबल चेंजेस इन IT इंडस्ट्री। और वो मतलब उन्होंने बहुत IT इंडस्ट्री में, कंप्यूटर की इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आए। उससे पहले कोई इतना बड़ा चेंज लेके नहीं आया था। एप्पल के प्रोडक्ट्स में पता ही नहीं था क्या होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से ये चेंजेस हमारी इंडस्ट्री में आए। दिस इज़ अ प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन। ये मैंने बताया था आपको, पिक आउट द एंटोनियम फॉर ईच ऑफ वर्ड्स इन कैपिटल इन ईच लाइन। कैपिटल में जो लिए गए हैं वर्ड्स, उनको हमें उसका अपोजिट फाइंड आउट करना था। तो ब्राइट का अपोजिट डल। ब्राइट इज चमकीला, डल मतलब थोड़ा सा वैसे ही, जो चमकीला ना होना, बड़ा रूखा रूखा सा होना। डिक्लाइन मतलब मना कर दिया। एक्सेप्टेड मतलब हाँ कर दिया, दैट इज़ स्वीकार कर लिया। डिक्लाइन मतलब मना कर दिया और एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया, मतलब ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। स्ट्रिक्ट
फ्लेक्सिबल, स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चीज़ों के लिए, और फ्लेक्सिबल मतलब कि ईजिली चीज़ को मान लेना। अपोज करना, अपोज मतलब मना करना, उसका विद्रोह करना। और सपोर्टेड मतलब उसका साथ देना। इन्वेस्ट मतलब किसी चीज़ में पैसा लगाना। स्पेंड मतलब उसको मतलब चीज़ों को उन चीज़ों के ऊपर उस पैसे को वो करना। स्पेंड होता है लाइक मैंने 5 रुपीज़ स्पेंड करे, 10 रुपीज़ स्पेंड करे, फिर मैंने अपना पूरा दिन बिताया, दैट इज स्पेंड मतलब बिताना। इन्वेस्ट लगाना, स्पेंड बिताना, ख़त्म करना उस चीज़ को। तो दीज आर द अपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स। ब्राइट का डल, डिक्लाइंड एक्सेप्टेड, स्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबल, अपोज्ड सपोर्टेड, इन्वेस्ट स्पेंड। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स रिटन इन कैपिटल। अब जो कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं उनका हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट आंसर इज स्टीव जॉब्स वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, क्योंकि ब्राइट था फर्स्ट तो हमने ब्राइट बनाया। स्टीव जॉब एक ब्राइट स्टूडेंट थे। स्टीव्स पेरेंट्स डिक्लाइन फॉर हिज फर्दर स्टडीज़, डिक्लाइन मतलब मना कर दिया, स्टीव जॉब के पेरेंट्स ने उनको आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया। थर्ड, माई टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मेरी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बड़ी सख्त हैं, दैट इज स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। माई फादर अपोज माई डिसीजन टू विजिट मुंबई अलोन, मेरे पापा ने मेरे मुंबई अकेले जाने के डिसीजन का विद्रोह किया, अपोज किया कि मुझे जाने नहीं देंगे वहाँ पे, उसको मना किया। फिफ्थ, आई इन्वेस्ट 2 hours डेली टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब मैं अपने 2 घंटे डेली लगाता हूँ इंग्लिश में बोलने के लिए, दैट इज़ द आंसर। प्रीवियस होमवर्क सोल्यूशन। Now it is your homework time. An assignment will be uploaded for the same lesson on Artquark as well as in Group. अब इसका assignment मिलेगा आपको, Artquark पर भी uploaded होगा वो, और Group में भी uploaded हो जाएगा बेटा। ओके, so this is your today's lecture all about the summary of the Steve Jobs lesson. Okay, and you will get assignment, and then after assignment I will teach either grammar lesson or reader lesson. Then I will take test, combined test of both lessons. Okay, thank you very much for watching this lecture. Do your homework on time and send me on time also by 7 p.m. so I can mark your attendance. Thank you.